All right. So thank you very much once again. So this topic is very relevant nowadays, managing stress. So we are not discussing how to kill stress. We are talking about managing stress because stress need not be killed. You will see that there are people who are too relaxed. They don't take stress at all. And because of that, they become irresponsible. Just like in school days, we used to remember that there were few students, they would not take stress at all. पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई नकल पे रख आस सो जा बेटा ओढ़ रजाई रब करेगा पास so they do not take stress at all वही रब करे पास करेगा और क्या ये स्कूल में कॉलेज वाले पास कराए हमें हमारा क्या जी so they don't take stress at all so this is one extreme another extreme is that taking so much stress that getting the victim of hypertension and BP and sugar and this and that and so and whatnot so both the extremes are not good taking no stress at all and taking so much of stress. So somewhere in between we should settle down, and that is known as positive stress. Positive stress is something which when we practice, then we behave very responsibly. Just like when a sprinter is about to run, on a mark, get set. Now there is stress. On a mark, get set. There is stress. Go, and then with full throttle, person runs towards the target line. So that means we see that this kind of stress is positive stress. So that case, some minimal amount of stress is required. It's like Request everyone to please keep their mics on mute. Please. Requesting Ken, please keep your mics on mute mode. Please. Yeah. So just like in a balloon, if we do not inflate the balloon, the purpose of the balloon is not met. And in case we inflate it too much, then it bursts. So some amount of air is there, so is required so that the balloon can be inflated. Similarly, some amount of stress is also required. Not zero stress, not too much of stress. Little bit of stress. Just like in a sabzi, if there is no salt, then sabzi is not tasty. And if there is too much of salt, then again sabzi is not tasty. So we should settle down somewhere in between. So that means we should have some little amount of stress. So that means we have to manage the stress so that it does not slip into either of the extremes. No stress at all or too much of stress. So that means we should settle down in between. And regarding stress, you will see that there are three kinds of people who would always be in stress, whether there is lockdown or lockup or whatever it may happen, but they are in stress. So what are these three varieties of people who are always in stress? They are, with all loyalty and fidelity, they are married to stress. These three kinds of people are, first one are those who are control freaks. Those who are always trying to controlling people, controlling wife, controlling husband, controlling children, controlling neighbor, controlling government, controlling. And when people have this maniac of controlling, they undergo stress. But constitutionally speaking, God is controller, we are not the controllers. So when we try to get into that role, that profile which does not belong to us, we get into stress. This happens. Just like this, one time in Mumbai, there were 6 great saints, and they would lie down their mats, and then they would give solutions to any kind of problem which people would come with. And that is one time one person came, and these 6 saints, they were having their 6 mats, lying on their 6 mats and answering all the questions. So one guy asked them, "Sir, I got a problem." So the 6 saints said, "What's your problem?" So he said, "Well, I want to control my wife, but I'm not able to control my wife. What should I do?" So the 6 saints, they smiled. They said, "Satvi chatai lagao. Let's have the 7th chatai, and let's have the 7th saint, because even we could not control our wives. So what can we propose or advise somebody to control the wife?" So the point is that, jokes apart, we are not the controllers. But when we are trying to control situations, sometimes they are beyond us. Just like, for example, this coronavirus thing is beyond us, actually. We can take some precautions, but that which is beyond me, now why to actually bang my head into it, because it is beyond my control.
The rainy season is beyond my control. The sunshine above my head is beyond my control. There are things way beyond my control. The growth of my nails is beyond my control. The growth of the hair is beyond my control. Is it possible that I grow curly hair next time? No, beyond my control. In fact, the food that we eat, it's beyond my control now. Whether it gets digested, does not get digested, is beyond my control. I guess he must have received some call. Yes, I received call that I should speak in Hindi. Yeah, actually, Deepak ji, whom we know as Dwarka, he called me up to say that let's have the session in Hindi. इसलिए मैं आप हिंदी में बोलूंगा, ठीक है जी? बीच में थोड़ी सी अंग्रेजी बोल दूंगा, पर वैसे हिंदी में बोलूंगा. So, तो ये 3 तरह के लोग हैं. So first one are the control freaks, जिनको ना नियंत्रण करने का बहुत शौक है, ठीक है? जिनको नियंत्रण करने का शौक है, तो इसीलिए ऐसे लोग भी हमेशा तनाव में ही रहते हैं, because they are always trying to control. सेकंड क्लास के लोग जो है, जिनको कि बहुत तनाव रहेगा, they would always be victim of stress, are those who are perfectionist. इनको सब चीज टनाटन चाहिए एकदम. काम हो टनाटन, सैलरी हो टनाटन, वाइफ हो टनाटन, सैलरी हो टनाटन, सेविंग्स हो टनाटन, गाड़ी हो टनाटन, बच्चे हो टनाटन, जॉब हो टनाटन, पड़ोसी हो टनाटन, पड़ोसी की वाइफ हो टनाटन, सबको टनाटन चाहिए इनको लाइफ में, बिकॉज यू आर परफेक्शनिस्ट. पर लाइफ में सब कुछ कहाँ टनाटन होता है? 10/10 सब जगह पर कहाँ मिलते हैं? हो सकता है मेरी वाइफ हो 6/10, मेरा पति हो 2/10, बच्चे हो 10/10, जॉब हो 7/10, पर सब कुछ 10/10 कहाँ होता है बाबा? So those who are perfectionists, such people are also into stress. जो लोग perfectionist होते हैं, इनके पास डिग्रियां होती हैं, इनके पास appreciation letters होते हैं, इनके पास trophies होती हैं, इनके पास medals होते हैं, और साथ में बीपी और शुगर की बीमारी के पर्चे भी होते हैं, because they are always in stress. इतना बुरा हाल मचा लेते हैं लोग अपना, तो हेल्थ खराब कर लेते हैं, बाकी ट्रॉफी से घिरे होते हैं. तो ये जब मरते भी है तो आप आसपास ट्रॉफी देख के मरते हैं कि इन्हीं ट्रॉफी से चक्कर में मैंने अपना बीपी और शुगर ऊपर नीचे किया था मैंने. अरे, so second class are those who are in stress, are the perfectionist. पहले है कंट्रोल फ्रीक्स, दूसरे हैं परफेक्शनिस्ट. अच्छा, तीसरे कौन है? तीसरे जो है उनको बोलते हैं एंजॉयमेंट मैनियक्स, यानी कि हर चीज में मजा देने वाले लेने वाले लोग. जहां जाएं बस मजा हो, जहां जाएं मजा. शादी करूंगा ना मजे के लिए करूंगा, नौकरी करूंगा ना मजे के लिए करूंगा, घूमने जाऊंगा ना मजे के लिए करूंगा, सब चीज में मेरे को चाहिए मजा 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 मजा. और देखिए जो लोग क्या करते हैं फिर ऐसे मजे मजे चक्कर में रहते हैं ना, फाइनली दे कीप स्विचिंग जॉब्स. भाई यार ये काम के मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, या मजा नहीं आ रहा, फिर रिजाइन करते हैं, दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, फिर वहां 6 महीने बाद मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, फिर अगेन नेक्स्ट प्लेस, फिर वहां मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा. ये इनका रेज्यूमे 4-4 पेज का होता है कि इस कंपनी में 6 महीना, इस कंपनी में 2 महीना, इस कंपनी में 6 महीना, और लेकिन सब जगह ये क्यों भागता रहा वानर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़? इसको मजा चाहिए था, मजा 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 मजा. अरे कुछ चीजें भाई ड्यूटी के तौर पे भी की जाती है, हर चीज में मजा मजा थोड़ी ना देखा जाता है. सो दैट फेज, ये थर्ड क्लास जो है वो है एंजॉयमेंट मैनियाक्स की. सो दीज 3 काइंड्स ऑफ पीपल वुड ऑलवेज बी विक्टिम टू स्ट्रेस. फर्स्ट वन आर कंट्रोल फ्रीक्स, इनको नियंत्रण करने का पागलपन छाया हुआ है. दूसरे हैं परफेक्शनिस्ट, जो कि चाहते हैं सब कुछ टनाटन हो, 10/10 हो. नहीं सर, सब कुछ 10/10 नहीं होता. और तीसरे वो लोग जो कि हैं एंजॉयमेंट मैनियाक्स, जिनको हर चीज है बस चाहिए खुशी, मतलब मजा आए हमको, मजा मजा मजा, लाइफ बन जाती है सजा सजा सजा. सो दैट फेज, ये 3 तरह के जो एटीट्यूड्स हैं ये छोड़ने बहुत अधिक जरूरी है. ऐसा है. अब जैसे कि अभी कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो इट्स अ टाइम ऑफ क्राइसिस. तो कई लोग हैं जो कि स्ट्रेस में है. हाँ. और एक व्यक्ति ने शेयर किया अमंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज दैट कि ना ही इज हैविंग किडनी प्रॉब्लम, और किडनी प्रॉब्लम है, उनका 25,000 रुपए का हर महीने का खर्चा भी जाता है, होम लोन भी जाता है, बच्चों को एजुकेट भी कराना है. अब ऐसी सिचुएशन में अब सैलरी आ नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है, क्या किया जाए? तो ऐसे में जो है कहीं होते हैं बेचारे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं. ऐसे एक व्यक्ति था, उसको बहुत स्ट्रेस था उसको.
तो भगवान से प्रार्थना भी किया रहा था, प्रभु मेरी हेल्प करो। तो गणपति अप्पा को पुकार रहा था, गणपति अप्पा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पैसा नहीं आ रिया, थारो भक्त रो रिया, गणपति अप्पा मोरिया। तो ही वाज स्ट्रेस, अरे गणपति अप्पा कुछ करिए आप। सो ही वाज फीलिंग सैड। तो ऐसे ही जो है ये एक केस जो मेरे साथ शेयर किया गया, that somebody is having such heavy expenses, और तो ऐसे में क्या किया जाए? Well, I would like to share recently some of the three people, they were professionally proficient but they have lost their job. ये कंपनी जो है now it has reduced to 10% because of movement है ही नहीं बिजनेस में, तो क्या करें थी? So that's why, so what they have decided now, अभी दोस्त हैं, close friends हैं, they have all shifted to one house, क्योंकि सब 35,000 अपने घर का किराया दे रहे थे, यानी कि 1,05,000 रुपए ये दे रहे थे अपने किराए पे। तो इसीलिए आप सबके सब एक ही घर में आ गए हैं, दो ने अपने घर छोड़ दिए हैं, आप एक ही घर में अब आ गए, तो इसलिए अब खर्चा जो है दैट इज 1/3 हो गया इस तरह से कम किराए के मामले में। बाकी रिसोर्सेज भी जो है नाउ दे आर बहुत ही हौले हौले करके अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये समय जो है अब 6 महीने तो चलेगा, कम से कम 2020 जो है ये कोरोना वायरस सारा खा जाएगा। उसके बाद 2021 से जो है बिजनेसेस विल स्टार्ट गेनिंग द मोमेंटम, उसको पूरा मोमेंटम गेन करने में भी 6 महीने लग जाएंगे। तो दैट मीन्स मोटा मोटा एक साल जो है ये डिफिकल्टी का समय है। तो दैट मीन्स अगर कभी भी ऐसे क्राइसिस आता है, तो क्राइसिस में ना ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या किया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल समबडी इज हैविंग किडनी इश्यू, और किडनी इश्यू तो उसमें क्या करना चाहिए? अब भाई भारी खर्चा तो उठा नहीं सकते हर महीने इतना ज्यादा, क्या किया जाए? कम से कम ये कर सकते हैं दैट वी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग जिससे कि ना ये 25,000 रुपए हर महीने खर्चा कम होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समबडी कैन गो फॉर नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या है? इट्स जस्ट अबाउट रेगुलेटिंग द डाइट। डाइट को रेगुलेट करते हैं, बॉडी प्योर होती है, बॉडी प्योर होती है तो धीरे धीरे करके डिसीजेस भी शरीर से निकल जाती हैं, while passing stool and urine and all these diseases in a due course of time they go away। तो होता अभी चल रहा 25,000 रुपए महीने खर्चा चल रहा है, आने वाले महीनों में this will certainly come down। why? Because now the body is becoming detoxified। ऐसा बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट one can also take, जैसे कि जो है खर्चा कम, because आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट usually is less costly than the allopathic treatment। तो इस तरह के जो हमें ये देखने चाहिए कि अगर कभी क्राइसिस अभी लाइफ में भी आया है तो क्या किया जा सकता है। Like recently there was crisis in the life of Sushant Singh Rajput, and entire nation is shaken by his decision to commit suicide। A person who is handsome, hunky, good looking, talented, and also was progressing, he also gave some great movies also in the past, or that was, but ऐसी situation में somebody is committing suicide, so most common the conclusion of the analysis of his life which came out was nepotism in Bollywood। कि बॉलीवुड में जिनके भाई माता पिता रहे हैं, पन्ने खा रहे हैं, तो इसलिए उनका कोई माई बाप है, उनका कोई गॉडफादर है, तो दे आर प्रोग्रेसिंग। पर जिसका कोई गॉडफादर ना हो, लाइक सुशांत सिंह राजपूत, so he decided to commit suicide because he's such a talented guy, and in Bollywood people are boycotting him। The big lobby is boycotting this talented boy। So in an utter feeling of desperation, he decided that okay, since I'm such a talented person that even I quit my graduation in the last year for my flourishing career in acting, और मैं पहुंच भी गया एक्टिंग की दुनिया के अंदर। अब वहां पर उसके बाद जब एक्टिंग में ज्यादा ऑप्शंस नहीं रही मेरी, तो फिर आई कमिटेड सुसाइड। तो ऐसा सुशांत सिंह राजपूत ने किया। बट हियर वी नीड टू लर्न जो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से, कि हमें दूसरी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। इन केस से बॉलीवुड हैज, मान लो इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रही वहां पर, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस दैट व्हाटएवर, so then I can go for maybe some other programs, maybe theaters, maybe TV shows and all that one can pursue। But the point is that कि जब एक ऑप्शन बंद हो जाती है, तो बजाय कि हमें डेस्परेट होकर के अपनी लाइफ छोड़ दें या सुसाइड कर लें, वेल ये करने की आवश्यकता नहीं होती। उस वक्त इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ बेंट। जैसा आप सीधे सीधे चल रहे हो ना, और अगर बेंट आए तो आपके सामने आपको दीवार नजर आती है, पर अगर लेफ्ट को देखे ना, यहाँ एक और रास्ता नजर आ रहा होता है हमको। So सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है, which of course it was very unfortunate, and we pray to God that the Supreme Lord bless the soul of Sushant Singh Rajput। But yes, one thing which we should learn not to do, कि अगर कभी लाइफ में क्राइसिस आए तो क्विट करना इज नॉट द ऑप्शन। क्विट करना जो है शुड नॉट बी द ऑप्शन, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ना हम इसके अलावा अब सिचुएशन में क्या कर सकते हैं।
आई जस्ट शेयर कि मेरे जो ऐसे 3 दोस्त हैं, अब जिनकी जॉब जा चुकी हैं, वो क्या करेंगे, सो दे शिफ्टेड टू वन होम। उन्होंने आपस में प्लान किया है, चलो कम से कम 6-8 महीने हम लोग साथ रहे, अभी सर्वाइवल को फोकस करना है, अभी अपने कंफर्ट्स को देखेंगे, अभी हम ये नहीं कहेंगे भाई प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है कि घर में 3-3 फैमिली जा रही है, देयर शुड बी सम प्राइवेसी मैन। अरे बाबा अभी तो सर्वाइवल का केस है। So they all discussed together and decided to save the resources in coming months because all the 3 of them have lost their jobs. तो उनकी वो अब जो सेविंग्स है उनको धीरे धीरे करके खर्च करना है, बिकॉज आने वाला साल जो है इट इज गोइंग टू बी टफ। सो दैट फेज हमें ऑप्शंस को देखना चाहिए क्राइसिस के समय में, बजाय कि हम हताश होकर के एंड देन वी जस्ट गिव अप। नो, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो है हमें ऑप्शंस देखनी होती है, अपने रिसोर्सेज को ग्रेजुअली रिलीज करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है व्हिच रियली हेल्प्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस इज द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी। Such a crisis came when the Pandavas were attacked by Ashwatthama. अश्वत्थामा के पिताजी थे, आप जानते थे, द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य की जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे अश्वत्थामा को इतना गुस्सा आया कि उसने नारायण अस्त्र को इन्वोक किया और नारायण अस्त्र फेंक दिया पांडवों की ओर। अब नारायण अस्त्र इज द टॉप मोस्ट वेपन जिसको कोई काट नहीं सकता। तो उसके पास ना अब बचने का सिर्फ एक तरीका होता है नारायण अस्त्र के समक्ष, और वो ये रहता है कि ना अगर आप झुक जाते हैं, प्रणाम कर देते हैं, कहते हैं सॉरी गलती हो गई जी, हाँ की शरण में, अगर आप ऐसा बोल देते हैं तो ऐसे में क्या करता है नारायण अस्त्र, देन इट गोज बैक। बट वन नोबडी कैन फाइट विद नारायण अस्त्र। सो लॉर्ड कृष्णा ही टोल्ड एवरीवन, सब के सब झुक जाइए, क्राइसिस सिचुएशन है, हालांकि खुद नारायण नहीं हुआ सब, but he was teaching everyone how to take care of the crisis. Everyone bow down, सब के सब झुक जाइए, तो सब के सब झुके। लेकिन भीम थे, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं झुकूंगा, हम किसी के आगे। So then Narayan Astra was moving towards Bhim to kill Bhimsen. So तभी लॉर्ड कृष्णा जो है तुरंत दौड़ कर गए, उसे गर्दन पकड़ करके नीचे लगा दी। And this way नारायण अस्त्र से जो है everyone was saved. नारायण अस्त्र से could not kill anyone or did not kill anyone rather I should say. अब ये क्राइसिस सिचुएशन में क्या हुआ, सब के सब झुक गए। झुकना जो मतलब है बेसिकली इट इज ह्यूमिलिटी। डिफिकल्ट टाइम्स में वी शुड लर्न टू समटाइम्स बेंड डाउन। पहले मान लीजिए अगर पराठे खाते थे, क्राइसिस सिचुएशन है तो कोई बात नहीं, चपाती भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप देखिए जिस चीज के अंदर जान होती है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर नदियां आगे बढ़ रही होती है, सामने पहाड़ आ जाता है, तो नदियां ये नहीं कहती नहीं हम तो यहीं से ही बहेंगे, पहाड़ कहता है देख मैं तो हिलने वाला नहीं हूँ। फिर नदी क्या करती है, नदी फिर डिसाइड करती है चलो ठीक है हम लेफ्ट साइड से होकर गुजरते हैं, तो लेफ्ट साइड से होकर के फिर नदी गुजरती है। सामने को पहाड़ आ गया, फिर राइट साइड से होकर गुजरती है। इस तरह से नदी क्योंकि फ्लेक्सिबल रहती है इसलिए नदी समुद्र से मिल पाती है। इस तरह से हम भी सफलता के समुद्र को मिल सकते हैं, कब, when we learn to be flexible in life, especially in the time of crisis. So Lord Krishna taught us by his own personal example, हालांकि he is the supreme lord, लेकिन भगवान अपने व्यवहार से भी सिखाते हैं कि अगर कभी क्राइसिस आए तो करना क्या है। So एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, that is the attitude of humility, learning to be flexible. इनफैक्ट पेड़ की जड़ें भी होती है ना, वो जब आगे बढ़ रही होती है, बीच में को पत्थर आ जाता है तो पेड़ तो पत्थर से ना वो टकराती नहीं है, तो फैल जाती है और फिर बगल से बहना शुरू कर देती है, आगे बढ़ना शुरू कर देती है, बिकॉज दे हैव लाइफ। Anything which has life would be flexible. Anything which is lifeless would not be flexible. And since we all have life, तो इसीलिए ईगोइस्टिक स्टिफनेस में फंसने के बजाय हमें ह्यूमिलिटी में आना चाहिए, विनम्रता में आना चाहिए, और इस तरह से जो क्राइसिस की सिचुएशन है उसमें स्ट्रेस को बर्स्ट किया जा सकता है बाय बीइंग हम्बल। ऐसा हमें करना चाहिए। और क्राइसिस से लड़ने का हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम मदर सीता एज वेल। When she was in Lanka, तो लंका में जब सीता मैया है वहां पर, at that time and Ravan is having all kind of proposals for her, temptations for her, लेकिन सीता मैया ने क्या किया था, when she was sitting beneath the Ashoka tree, तो उनके सामने जो है दो तरह के फूल थे, एक ग्रीन कलर के फ्लावर थे और व्हाइट कलर के फ्लावर थे। तो ग्रीन कलर का फ्लावर देख के याद करती थी श्री राम को, बिकॉज श्री राम इज ग्रीनिश इन कॉम्प्लेक्शन, एंड व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्शन किसका है, लक्ष्मण जी का। So she would remember Ram and Lakshman just by having those two flowers. तो रावण बीच में आता था और वो प्रपोजल देता था, you become my queen, I'll make you the chief queen even more than Mandodari, come। लेकिन उस वक्त जो है सीता मैया क्या करती थी,
अपनी जो भक्ति भावना है, उनकी ऊंची डिटर्मिनेशन है, उसके द्वारा वो टेम्पटेशन में क्यों टेम्प्ट नहीं होती थी, बट शी वुड रिमेन फिक्स्ड एंड रिमेम्बरिंग थ्रू दीज टू फ्लावर्स दैट यस आई मस्ट एंड आई विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू राम, लाइक दैट। तो इस तरह से वो जो है, ये टेम्पटेशन के समय में बह नहीं जाती थी, बल्कि उस समय शी वाज वेरी हैविंग फियर्स डिटर्मिनेशन, ऐसा। इनफैक्ट व्हेन रावण केम टू मदर सीता, तो माता सीता ने वहां घास का तिनका लेकर कैसे नीचे फेंक के दिया, एज इफ इट इज लाइक अ सिटिंग प्लेस फॉर यू, क्या भाई बैठने को जगह दिए, लो इस घास पे बैठे हो तो। एंड आल्सो इट रिप्रेजेंटेड कि ना जब श्री राम आएंगे तो तारी तेरी सारी लंका को भस्म कर देंगे, तो फिर तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी चाहिए होगी तेरे को, झोपड़ी तो फिर घास के तिनकों से बनती है ना, ये घास का तिनका ले ले। सो एट दैट टाइम शी वाज हैविंग दैट फियर्स डिटर्मिनेशन, वो डिप्रेशन में नहीं थी, चलो मैं सुसाइड कर ही लेती हूँ बस, अब जी के हम क्या करेंगे, अब राम जी पता नहीं कभी आएंगे, इतने महीने बीत गए हैं, राम जी तो आए नहीं, बिकॉज इट टुक 10 months, 10 महीने बीत गए थे, बट स्टिल शी वाज हैविंग अ होप दैट राम जी विल कम। सिमिलरली व्हेन बैड टाइम्स कम, वी शुड ऑलवेज हैव द होप गुड टाइम्स विल कम, और ये बात सोचते हुए कि गुड टाइम्स विल कम, वन शुड रिमेन डिटरमिन्ड दैट यस ये बैड टाइम है पर ये टेम्परेरी है। जैसे एक राजा था, उसने अपने मंत्रियों को बोला कि मुझको एक ऐसी चीज दो मेरे बर्थडे पे जिसको देखने के बाद अगर मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी हूं तो खुश हो जाऊं। अच्छा जी, तो एक मंत्री ने क्या किया, एक अंगूठी दी उस राजा को, उस पे लिखा हुआ था ये समय बीत जाएगा। तो जब भी वो राजा खुश होता था और इस अंगूठी को देखता था और पढ़ता था ये समय बीत जाएगा, तो दुखी हो जाता था, ओ ये समय बीत जाएगा। और अगर दुखी है, मान लीजिए लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो वो अंगूठी को देखता था और अंगूठी पे लिखा होता था ये समय बीत जाएगा, तो फिर खुश हो जाया करता था, वाह ये समय बीत जाएगा, टेम्परेरी है, यस टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, ये समय टेम्परेरी है, यस। दुख और सुख दोनों संसार के अंदर टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी, बोथ आर टेम्परेरी। तो इसीलिए दैट वेज वी कैन लर्न फ्रॉम मदर सीता दैट शी वाज वेटिंग बट शी वाज पक्का, उन्हें कभी भी जो है शी नेवर गेव herself to त्रिजटा or the demonists or Ravana or Mandod, in no one at all fixed up that yes the grace of the Lord will come, the grace of the Lord will come, the grace of the Lord will come. So she is handling this crisis with hope and determination, hope and determination, hope and determination. So this is what we can learn from Mother Sita's example. ऐसे एग्जाम्पल जो है भरत का भी आता है रामायण के अंदर। भरत का मतलब होता है जो कि भार उठाने वाला है, उनको बोलते हैं भरत। अच्छा भरत जी के ऊपर क्या 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 भार उठाया हुआ है उन्होंने, ऐसा बोला उनके ऊपर क्राइसिस आई थी दैट एवरीवन पुट एन एलिगेशन ऑन हिम, सबने आरोप लगाया भरत जी के ऊपर कि भरत की वजह से राम को जाना पड़ा, भरत की वजह से क्या कहीं ने मांग गया दशरथ जी से सारा सिंहासन वगैरह अयोध्या का, ये भरत की वजह से हो, जबकि भरत की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, झूठा आरोप लग गया उनके ऊपर। तो ये भार था जब एलिगेशंस का, तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने इस एलिगेशन को इसको मिटिगेट किया, हाउ, बाय हैविंग हिज ओन गुड कैरेक्टर। तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने अयोध्या के बाहर एक कुटिया बनाई, और कुटिया में भी रहते नहीं थे सिर्फ, कुटिया में गड्ढा खोदा और नीचे रहा करते थे, क्योंकि जब श्री राम इस समय कहीं ना कहीं धरती पे सो रहे होंगे तो मैं सेम लेवल पे कैसे सो जाऊं, तो मुझे उनके नीचे सोना चाहिए। तो इसलिए कुटिया बनाई अयोध्या के बाहर, और वहां पर अंदर जाकर के गड्ढा खोद करके नीचे रहा करते थे, लाइक दैट, और वहां से अयोध्या सारी संभाला करते थे, और वहां सिंहासन रखा हुआ था, वहां पर रामचंद्र जी की चरण पादुका रखी हुई थी। एंड इन दिस वे by his good character he passed the time of crisis, he passed the time of test and trials. इसी तरह से हमारी लाइफ में भी कभी अगर डिफिकल्ट टाइम आता है, दैट्स अ टाइम टू प्रूव आवर कैरेक्टर, हम असल में वास्तव में हम कौन है, ये क्राइसिस में ही पता चलता है। क्राइसिस का समय आता है चरित्र को निखारने का, एंड लेट द वर्ल्ड नो व्हाट इज देयर इनसाइड। जैसे कि ना गन्ना होता है, गन्ने को जब क्रशर में डालते हैं ना, तो ही उसमें से जूस निकलता है, राइट। लेकिन अगर क्रशर में ना डालें, किसी को क्या पता भाई ये बांस है या गन्ना है, बांस हो गन्ना हो बाहर से दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। लेकिन जब इनको क्रशर में डाला जाता है ना, अगर बांस को डालेंगे तो क्या होगा, कट 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 करके निकल आएगा, लो जी एक बूंद जूस नहीं निकला, अरे। लेकिन यही गन्ने को डालेंगे जो कि बाहर से बांस ऐसे दिखता है, उससे भी गांठें होती हैं, सभी गांठें होती हैं, दे हैव सेगमेंट्स, दोनों में सेगमेंट्स होते हैं, जब गन्ने को डालेंगे तो उसमें से जूस निकलेगा। सिमिलरली जब क्राइसिस का टाइम आता है,
So that what is inside comes outside. So भरत जी ने क्राइसिस को कैसे हैंडल किया, जबकि उनके ऊपर क्राइसिस आई हुई थी एलिगेशंस की, क्राइसिस आई हुई थी ऑल ऑफ अ सडन मैनेज करने की अयोध्या को। क्या करेंगे, सारे भार को सहन कर रहे थे वो। ही वाज टॉलरेटिंग दैट एंड ही वाज शोइंग हिज गुड कैरेक्टर, टॉलरेटिंग दैट, showing the good character, tolerating that and then showing the good character. So crisis के समय में हमें ये करना चाहिए, we have to tolerate that situation and then prove our good character. अब ये समय, जैसे अब ये कोविड-19 का समय, नो डाउट इट्स अ इन अ वे इट्स अ नेगेटिव टाइम एज वेल। कि हम देखते हैं कि अभी दुनिया के अंदर करीब 4 लाख से ज्यादा लोग अपने अपने हाथ धो चुके हैं अपने प्राणों से। सो दैट इज इट्स अ सैड टाइम। इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमी स्लो डाउन में है या फिर एकदम डाउन गई हुई है या बैठ गई है। सो इसलिए बहुत दैट इज आल्सो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। लेकिन इसको भी ना अब यहाँ पर बजाय कि स्ट्रेस लेने के, नाउ आई शुड सी कि ना इस कोविड-19 के समय में भला इसको सही से मैनेज कैसे किया जाए। ये समय आया है, इसका अच्छा इस्तेमाल क्या किया जाए। या अब ये कोविड-19 की वजह से ये जो कोरोना वायरस का जो क्राइसिस आया है, इसका एक फायदा जो हुआ पूरी दुनिया को, कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग वेजिटेरियन हो गए। सबको पता है कोरोना वायरस भाई, ये तो वुहान नाम का एक स्थान है जो कि सबसे बड़ा नॉनवेज मार्केट है चाइना का। इसका ओरिजिन जो है वहां से। Of course, there are other stories as well that it was China's biological weapon, but ये भी है कि भाई वुहान नाम का स्थान है जो कि जहाँ चमगादड़ का जूस मिला करता था, चमगादड़ का सूप मिला करता था, और उसी से जो है ये वायरस आया है। और पिछले सारे वायरस आए, इबोला हो चाहे H1N1 हो, ये सब जानवरों से ही आए हैं। Somewhere when we did so much of injustice to the lives of the innocent animals, so we had to face the repercussion. तो उसी तरह से कई लोग हैं, करोड़ों लोग वेजिटेरियन हो गए इस दुनिया के अंदर बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। की क्या रे भाई, कब नॉनवेज के थ्रू कोई कोरोना वायरस आ जाएगा, छोड़ दो जी। अब जब सात्विक खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, सात्विक खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सात्विक खाएंगे, तो बुद्धि भी कैसी होगी, सात्विक होगी। जब बुद्धि सात्विक होगी तो जीवन सात्विक होगा वास्तव में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन को सात्विक करने के लिए लोगों में एक पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए अन्न को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और अन्न जो है लोगों का पहले से अब ज्यादा शुद्ध हुआ है बिकॉज पीपल आर गिवन अप नॉन वेज। मिलियंस ऑफ पीपल इवन इन चाइना में लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं। चाइना में वेज और नॉन वेज की क्या डेफिनेशन है, अगर तो प्राणी आपकी प्लेट में चल रहा है तो उसको नॉन वेज बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर प्राणी पड़ा हुआ है लेकिन वो हिल नहीं रहा तो उसको वेज बोलते हैं। जैसे जेलीफिश हो या ऑक्टोपस हो, ऑक्टोपस अगर बाहर जा रहा है तो हम कहेंगे तो नॉन वेज खा रहा है, लेकिन ऑक्टोपस ऐसा पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा, तो कहेंगे इट्स वेज, ये तो वेज है। हर वो चीज जो पानी में तैरती है, हर वो चीज जो जमीन पे चलती है, हर वो चीज जो आसमान में उड़ती है, उसको चाइनीज लोग खा लिया करते थे, आज भी खाते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन इवन चाइना के अंदर जो है millions of people have become vegetarian just to save themselves from coronavirus. तो इसीलिए जो है लोग शाकाहारी हो रहे हैं और उनको विश्वास हुआ that even by being vegetarian we can be hale and hearty and we can be powerful as well. शक्ति मिलती है वेजिटेरियन बनने से। आपको नॉन वेज वाले बोलते हैं यार क्या खाते हो, घास फूस खाते हो। आप देखिए हाथी के अंदर ताकत है, हाथी क्या खाता है, घास फूस। सांड में कितनी ताकत होती है, सांड क्या खाता है, घास फूस। यानी ताकत कहां पर है, घास फूस में ही ताकत है एक्चुअली। So when we take this kind of food, which is vegetarian food, and of course when it is offered to God, that is the best. तो ऐसा food जो है is certainly best for us. तो पूरी दुनिया में लोग vegetarian हो गए, इसका ही फायदा हुआ। Second फायदा हुआ that even without junk food we can be happy. Junk food भी कम हुआ because अब बाहर का क्या खाएंगे जी, कुछ पता नहीं है बाहर का, तो कोई जो लेकर के अभी आएगा पता लगा उसी को हुआ ये वायरस, ओ माय गॉड, दिक्कत हो जाएगी जी। तो पता लगा हम बिना जंक फूड के भी खुश रह सकते हैं, घर में रहकर के मेरी वाइफ जो बनाती है, मेरी माँ जो बनाती है, मेरी बहन जो बनाती है, हम उसमें खुश रह सकते हैं एक्चुअली। तो लोगों को ये भी कंसेप्शन जरूरी दैट without junk food we cannot be happy, junk food is way of life. No, it's not like that. साथ ही और क्या फायदा हुआ इस कोरोना वायरस के में, अगर हम ध्यान से देखें, द नेचर प्रेस द रीसेट बटन। जैसा देखें कभी कभी हमारे गैजेट्स हैं वो हैंग हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, लाओ जी वो सुई लेकर के आओ और इसमें इसकी रीसेट बटन को दबाते हैं। रीसेट बटन को दबाने से क्या होता है, फिर से ये अपने अनलॉक हो जाता है और जो हैंग हुई सी सिचुएशन है उसे बाहर आ जाता है। उसी तरह से द नेचर कुड रीसेट इटसेल्फ
ये दोबारा आपने जो होता है फैक्ट्री डिफॉल्ट होता है, जिस तरह से फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटअप पे आप आया, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस थिंग। तो बजाय कि स्ट्रेस लेने के, वी कैन सी phase, we can see that this coronavirus thing has been helpful to us. Actually, why? Because nature is becoming pure. I saw one photograph from Punjab, Himalayas are being visible. क्यों? क्योंकि ना pollution जो है वो चला गया. There is no pollution as such. तो पंजाब से even Himalayas नजर आ रहे हैं because हवा साफ है. I saw one photograph um, um, where हर की पौड़ी, हरिद्वार, वहां पर मदर गैंजेस is as clear as a glass. जैसे शीशा होता है ना, कोई ऐसा ना, कोई शीशा है ये, इतना साफ पानी हरिद्वार के अंदर. अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन हुआ करता था, पर अभी नहीं है. यमुना, वी आर सीइंग इन दिल्ली, यमुना ब्लूइश कलर. हमने कभी सोचा नहीं था ब्लूइश कलर की यमुना. वी ऑलवेज सॉ ब्लैक यमुना विद झाग, with all foam over it. So that means we are seeing that nature has pressed the reset button. So many species are being restored. जैसे sparrow, चिड़िया, वो विलुप्त होती आ रही थी because of pollution and all that. लेकिन अभी nature has pushed the reset button. So we are seeing even on roads we could see deers and peacocks. This was happening actually. तो हर साल 11 महीने अगर हम काम करें और एक महीना अगर ऐसा ये लॉकडाउन हो जाए ना, तो नेचर को मौका मिल जाएगा टू रीसेट. हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा. आपको सोचता कुछ लोग इसको ना माने, कहते नहीं सर प्लीज ऐसे एक महीना ज्यादा हो जाएगा जी, नहीं नहीं नहीं. अरे नेचर इज सर्विंग अस. नेचर विल, अगर नेचर ही खराब हो जाएगी ना, हमारा नेचर खराब हो जाएगा. दैट्स इंपॉर्टेंट. सो दैट इज नेचर कुड प्रेस द रीसेट बटन. दैट्स आल्सो अनदर थिंग व्हिच हैज हैपेंड. गुड. और आने वाले समय में so many jobs are going to come in India. अभी आपको जॉब क्राइसिस हो रखा है बिकॉज बिजनेस जो है वो रुके हुए हैं, इसीलिए जॉब्स नहीं है. बट आने वाले समय में so many jobs are going to come, especially in terms of manufacturing as well. अभी तक ये चला था कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स थी they would go to China because China is the largest manufacturing hub of the world. और communications की जॉब, back end job, they would come to India because Indians are very good in communication. Excuse me. Because Indians are good in communication. इनके पास वाणी का ऐश्वर्य भगवान ने बहुत दिया है इंडियंस को. ये अमेरिकन एक्सेंट में बात भी करेंगे. So, all right. Okay, can you see the Windows button? Okay, press it. Yeah. Now minimize all the windows. ये अंग्रेजी एक्सेंट में भी जो है बात कर लेते हैं, ये चाइनीज एक्सेंट में भी बात कर लेते हैं. इंडियंस भाई बड़े माशाल्लाह लोग हैं, ये कमाल, मतलब इनकी क्या वाणी का ऐश्वर्य इनके पास. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग जाया करते हैं चाइना. In just past 2 months, you would be happy to know that more than 1,000 companies have decided to shift their plant from China to India. क्योंकि भले चाइना कितना एश्योर करे, नहीं 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 हम बिल्कुल कोरोना फ्री देंगे आपको सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कुछ नहीं पता भाई चाइना से जो आएगा उसमें कोरोना वायरस होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता. Let's shift our plants to another country which has got a lot of population, and that is India. So more than 1,000 तो अभी 2 महीने में ही आ गई हैं. 10,000 technical jobs, IT jobs, Australia was about to give to China. Now they are giving it to India. 10,000 jobs recently, 1 week back. So that means आने वाले समय के में jobs बढ़ने वाली है. अभी सिर्फ एक समय है, 6 महीना plus 6 महीना, तो jobs are going to increase. My sister, she is in HR. वो HR में भी जो है international HR में है. So I asked her what are the HR patterns now in organization. So she said कि आने वाले समय में जो साइबर से रिलेटेड यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड जॉब्स हैं, they would increase by leaps and bounds. क्योंकि एजुकेशन कैसे हो रही है? ई एजुकेशन, ट्रेनिंग, ई ट्रेनिंग, मीटिंग्स, ई मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ई कॉन्फ्रेंसेस, everything is happening on e-commerce, e-business, e internet. So that means now the whole business will shift to the internet platform. और क्योंकि बिजनेसेस अब जो है इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे ज्यादा होंगे, एक्सचेंजेस इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे होंगे, डील्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे होंगी, ट्रेनिंग्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे होंगी, तो इसीलिए क्राइम भी कहाँ ज्यादा बढ़ेगा? इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे. सो साइबर क्राइम वुड आल्सो इंक्रीज. इस साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए साइबर सिक्योरिटीज की आवश्यकता पड़ेगी और साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ेगी. दैट इज इन फ्यूचर thousands and thousands of cyber professionals would be required so that they can offer the cyber security.
So that, and they are going to be well paid jobs as well. तो इसलिए आने वाले समय में there are so many jobs they are about to come, but yes, it is just a matter of time. Already business is shifting from China because China has lost its trust all across the globe. Even there were countries who were asking for remuneration from China. Even Donald Trump, he doesn't call coronavirus as coronavirus. He says it's a Chinese virus. One reporter asked him कि भाई आप इसको क्यों बोलते हैं Chinese virus? इसका नाम तो कोरोना वायरस है. So then Donald Trump said कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है इसकी? China. So I'll call this as Chinese virus. So he was fixed about that. The point is that all across the globe, even though China is such a giant in terms of businesses, in terms of economy, it's a giant. लेकिन अभी अगर सारे जो countries हैं, if they will all unite together, and especially when they will have their manufacturing as well as communications and as well as back-end jobs, their accounting and everything will come to now India. And that was in near future, flood of jobs would be coming. Flood of jobs would be coming. It's going to be there for sure, 200%. Take my words, it is going to happen. So इसीलिए क्राइसिस समय में जो अगर ये सोच के बैठे कि अब जॉब चली गई जी, हम आत्महत्या कर लें, कहीं कूद जाएं, कहीं से कुछ पी लें, हम अरे नहीं भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लो. In terms of jobs, things are going to become better, and not just better, much better than before, actually. Much better than before. So it is just a matter of short period of time when this period will pass. So in terms of businesses also, we see that it is going to be a bright time, bright future. If India is to become a superpower, it will become a superpower. In the near future, it will. और हमारी जो इकोनॉमी भी है वो डाउनवर्ड हो रही है because of our 50 years of bad policies. उसको रिकवर करने में इतना टाइम लग रहा था. So that phase, of course, we should, like Narendra Modi ji, he gave one slogan, local ka kare vocal. So if we do that, if we do not take this Chinese product at all, if we start encouraging our Indian products, so economy will get a fuel. Looking India इतनी बड़ी market है कि internationally products especially design होते हैं for Indian market. It's one of the biggest market in India, in the world, Indian market. तो इसीलिए that means Indian market is that big. So अगर local को हम वो करेंगे vocal, so certainly that will also encourage economy to flourish. क्योंकि पैसा बाहर नहीं जाएगा, पैसा इंडिया में रहेगा और यहीं पर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको. So it will happen, of course. So that means in coming times, future is bright for India. और चाइना जैसा देश जिसमें बहुत घमंड रहा है हमेशा अपनी पावर को लेकर के, it would be melted down. Why? Because everyone would join together against China, and especially they will have trust on India, where people are skillful, people are talented, people are knowledgeable, people having great attitude and great leadership in the form of Narendra Modi as well, because he's an international leader. He's not just an Indian leader now. So इसीलिए आने वाला समय even professionally speaking आप सभी CES के लिए वो अच्छा है. तो इसलिए कोरोना वायरस का ये डार्क समय जो है इसको थोड़ा झेल लीजिए, and it will certainly pass. लाइफ वाइज ऐसे होता है ना, कभी कभी आकाश में जब बादल छाए होते हैं तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही होती, लेकिन थोड़ा टॉलरेट करते तो क्या होता है, बादल छट जाते हैं, सूरज की रोशनी फिर से आना शुरू हो जाती है. Similarly, we have to just wait for some time, and then of course good times are about to come, and for sure it will come. It's about to. It is just that businesses are to come back to the momentum after 6 months, and things will be fine by God's grace. Yes, we should all pray. It will certainly come to the good stand in India, and that case we'll see that in India will become a superpower very soon in coming years. It will. साथ ही this thing has also made people more spiritual. Now spirituality is must. Spirituality जो है, it's must for us. It's not an optional thing कि ना देखो बुढ़ापे में करेंगे यार, अब और क्या, देखो अभी इतनी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास, अब ये जिम्मेदारियां पूरी करें भाई, या फिर अब ये स्पिरिचुअलिटी या भक्ति वगैरह अरे ये बुढ़ापे में करेंगे, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, सारी किस्तें हमारी चुक जाएंगी, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, दहेज लोन, ये लोन वो लोन, फिर जो है then we will take to spirituality. But excuse me, if when we do not take to spirituality, then what happens, we are not able to handle the crisis. जैसे हम देख रहे हैं कि रिसेंटली कई सुसाइड्स अगर होते हैं, चाहे वो फिल्म एक्टर्स के हों, चाहे वो IAS ऑफिसर्स के हों. आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस ऑफ IAS ऑफिसर्स हु हैव पावर, पोस्ट, पोजीशन, making a selfie video. I'm so depressed about my life. I can't see this corruption which is happening all around. I can't tolerate this pressure. I can't see this. I can't tolerate this darkness. I'm committing suicide. An IAS officer is committing suicide. So sad. इस तरह से engineers हैं, they are committing suicide. Doctors हैं, they are committing suicide. तो ये क्यों है भला? ये इसलिए हो रहा है because
people are not becoming spiritual. But when difficult times they come, हमने देखा है people tend to become spiritual. जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीवी पे महाभारत और रामायण they became super duper hit. मतलब सारे रिकॉर्ड्स अब तक के टीआरपी के व्यूअरशिप के टूट गए, बिकॉज इन बैड टाइम्स पीपल ट्राई टू सीक गॉड. और इसलिए रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियल्स रिकॉर्ड दे ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप. तो इसीलिए सुख में सुमिरन जो है लोग नहीं करते, दुख में सुमिरन सब करते हैं. लेकिन जो सुख में सुमिरन करता है तो दुख कभी होता ही नहीं है. राइट, आपने सुना होगा ये वाला दोहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है का होए. So that ways when we have the spiritual quotient, the spiritual need in our existence, when it is met, जब ये हमारी पूरी होती है तो ऐसे में होता क्या, व्यक्ति के अंदर एक ना मजबूती आती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ आती है. तो जब ये स्ट्रेंथ नहीं होती, then person sees well the life has become like a deadlock, now it is blocked, और मुझे कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, एक ही तरीका है, and people just quit, and that's very sad. तो इसीलिए बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानना that one should become spiritual. Spirituality is the need of everyone, whether somebody is young, somebody is old, somebody is woman, somebody is a man, a professional, a working professional, a businessman, everyone. सबकी जरूरत है spirituality. When I say spirituality, it does not mean that you give up your job. No. In the morning, you get up early, you chant the names of God, you read a couple of pages of scriptures like Bhagavad Gita and all that. If you are a Muslim, then maybe Quran. If you are a Christian, maybe Bible. You read that and chant names of God, and then go forward and do your duties nicely. So इस तरह से we should also take out time for spirituality. We should regularly meet the devotees, the spiritualists, and ask questions about life. ये भी करना चाहिए. So then actually we would feel nourished. Like nowadays, people are going for spiritual discourses. Many spiritual discourses. Like every day, I am giving 4 discourses. Now till mid of July, 3rd week of July, I'm packed every day with 4 discourses, because now it's a difficult time. कठिनाई का समय है, दिक्कत का समय है. So let's hear some solutions. Let's hear something about divinity. Let's go beyond our everyday calculations and facts and figures. Let's go beyond them. So people are doing that. तो ज्यादा लोग spiritual आजकल हो रहे हैं because ये दुख का समय है, ये कष्ट का समय है. So that is, this education is happening. So many e-courses are happening nowadays. So like 1 week course or a 1 month course on Bhagavad Gita. Somebody wants to do such a course can go by such a course. Quiz contests are happening. Spiritual quiz contests are happening. And say even Rath Yatra is happening. Rath Yatra is happening by ISKCON Mayapur. So that ways we see कि ऐसी चीजें हैं जो कि हो रही हैं आज. So education का समय है basically. जब अर्निंग नहीं हो रही होती तो हमें लर्निंग पे काम करना चाहिए. जब अर्निंग नहीं हो रही होती तो हमें लर्निंग पे काम करना चाहिए. So इसीलिए that way it's a time for learning. ये सीखने का समय है, ये बढ़ने का समय है, ये ग्रोथ का समय है. Because we should not just go through life, we should grow through life. पर grow हम कैसे करेंगे? Grow करते हैं when we have education, when there is learning. तो आज कई लोग हैं जो कि आज सीख रहे हैं कि आज कुछ करने को नहीं है जी, अब क्या करें, चलो जी कुछ सीखते हैं फिर. And that's a very good way of spending this difficult time. कि अब अगर earning नहीं हो रही तो हम कुछ सीखते हैं, कुछ learning हो जाए. Why not? Even skill point of view, so somebody can learn MS Excel, MS PowerPoint. Udemy के ऊपर कई सारे courses हैं, one can enroll in those courses and do courses as well. तो skill development भी कर सकते हैं, साथ में knowledge development कर सकते हैं, spiritual development कर सकते हैं. It's actually a great time for learning. And that is we see the example of Pandavas as well, कि जब उनका जब वनवास हुआ, 12 साल का वनवास है, 1 साल अज्ञातवास, 13 years of exile. 13 years of exile में what they were doing? They were meeting the sages. संत महात्माओं से मिला करते थे, उनकी बैठकर उनसे सवाल जवाब किया करते थे, प्रश्न पूछा करते थे, सुना करते थे, और अपने वेपन्स जो थे उनको हासिल किया by meeting such a demigod and all that. So they were preparing. During the time of crisis, it's a time for preparation. उसी तरह से बजाय कि स्ट्रेस लेने के, क्राइसिस की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? We should undergo a kind of preparation. हमें तैयार करना चाहिए अपने आप को फ्यूचर के लिए. We should sharpen our edges. जैसे आप देखिए, कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी हमेशा पेड़ नहीं काटती रहती. कभी कभी जाकर क्या करता है, कुल्हाड़ी के एजेस को शार्प करना पड़ता है, तब जो है अगला कुल्हाड़ी अपना काम करती रहती है. Right?
जैसे आपने कई लोग हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते होंगे, क्या हम व्हाट्सएप पे हमेशा 24 घंटे रहते हैं? नहीं, हम 24 घंटा व्हाट्सएप पर नहीं रहते, हम लोग ऑफलाइन भी जाते हैं, हम लोग हमेशा ऑनलाइन नहीं रहते। जो लोग 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं ना, ऐसे लोग फिर ऑनलाइन नहीं रह पाते, बिकॉज वो ऑफलाइन कभी गए ही नहीं। सिमिलरली नाउ एवरीडे फास्ट पेस लाइफ, एक रूटीन लाइफ जिसमें बढ़े जा रहे 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 बढ़े जा रहे, वी आर जस्ट हैविंग अ फास्ट पेस लाइफ, पर इसमें हम ऑफलाइन तो कभी जा ही नहीं रहे, क्योंकि ऑफलाइन जा नहीं रहे, इसीलिए भी स्ट्रेस है। तो इसीलिए कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन का समय है, इसने हमें क्या किया, एक हमें ऑफलाइन जाने का मौका दिया, ऑफलाइन जाने का मौका दिया ताकि हम खुद पे काम कर सकें, हम खुद के साथ समय बिता सकें, राइट, हम अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकें, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। आपको जाने खुशी होगी ना, डेथ रेट हैज 27% कम डाउन। क्यों? कोरोना वायरस चक्कर में क्या है, लोग पीपल आर स्पेंडिंग टाइम on their health, they are doing exercise, they're having healthy food, there's less stress in terms of targets and quality parameters and this and that, politics and all that. So इसीलिए क्योंकि फ्रेश एयर है, तो इसीलिए कई सारी बीमारियां नहीं हो रही, ब्रोंकाइटिस लोगों को कम हो गया, ब्रोंकाइटिस नहीं हो रहा, कैंसर नहीं हो रहा, जो डेथ हो रही है कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, पर बाकी बीमारियों से बड़ा कम मृत्यु हो। तो दैट मींस ओवरऑल देखें, डेथ रेट हैज कम डाउन 27% during this coronavirus thing. So that means people are becoming, physically also healthy, right? एक mental health में क्यों दिक्कत आ रही है उनको, because they are thinking of the future, and because they are thinking of the future, इसलिए एक sense of insecurity है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा क्या होगा। Future is mystery, past is history. Past क्या है, history है, future क्या है, mystery है, दोनों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। Present is a gift, इसलिए प्रेजेंट को बोलते हैं प्रेजेंट। ये लीजिए आपके लिए प्रेजेंट लेकर के आए हैं, प्लीज टेक दिस प्रेजेंट इज फॉर यू। क्यों बोलते हैं प्रेजेंट? बिकॉज प्रेजेंट, द टाइम प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, इट्स एक्चुअली अ प्रेजेंट। यू शुड फोकस ऑन दिस टाइम, अभी मुझे क्या करना है, इट्स टाइम फॉर लर्निंग, इट्स टाइम फॉर ग्रोथ। और देखिए हमने वैसे कितनी पढ़ाई की हुई, आपने आपने सीए के लिए पढ़ाई की है, मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ी किसके लिए, पापी पेट के सवाल के लिए, राइट, पढ़ी ना हमने। हमारे टाइम में हम जोक बोला करते थे कि समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। तो ये तो हमारी लाइफ रही है, जस्ट टू अर्न मनी फॉर द बेली, उसके लिए कितनी किताब पढ़ी हम लोगों ने, लेकिन जिंदगी जीने के लिए भला हमने कहाँ नॉलेज दी बाबा। सो नाउ इज द टाइम टू एक्वायर नॉलेज अबाउट लाइफ एज वेल, द पर्पस ऑफ लाइफ, who is God, who am I, how to come closer to God as well। जब इस बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, इसकी वजह से हमारा तनाव कम होता है, बिकॉज नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ द हायर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इससे भी तनाव हमारा कम होता है। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन आई है, ये वास्तव में हमको प्रिपेयर करने के लिए आई है, ये हमारे एजेस को शार्प करने के लिए आई है, ये हमारी लर्निंग को और अच्छा करने के लिए आई है, ये हमको और गहरा बनाने के लिए आई है, ये जो सिचुएशन आई है। इन दिस वे वी कैन एक्चुअली कॉन्कर स्ट्रेस वेरी इजीली। और जिनको लगता है कि ना दुनिया को चेंज करना है हमें, दुनिया को हम क्या चेंज करेंगे, सर सबसे पहले तो खुद को चेंज करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, नो, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, देन एट होम, देन टू द वर्ल्ड। एक व्यक्ति था, वो सोच रहा था कि ना मैं दुनिया बदलूंगा, दुनिया बदलूंगा, दुनिया में कोई बात नहीं सुनता उसकी, उसने कहा बात को सुन नहीं रहा भाई, चलो मैं अपने देश को बदलता हूँ। उसमें देश को बदलना चाहा उसने, देश में भी कोई बात नहीं सुनता उसकी, कहता लो जी कोई बात ही नहीं सुनता। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, अपना ना पहले शहर बदलता हूँ। तो उसने फिर अपना शहर बदलना चाहा, शहर में कोई बात नहीं सुनता उसकी। अरे लो कमाल की बात है। फिर उसने सोचा चलो अपनी सोसाइटी को बदलता हूँ, मैं कम जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, इसको बदलता हूँ। इसको बदलना चाहा, कोई बात नहीं सुनता उसकी। उसने कहा चलो यार ऐसे करता हूँ, अपने परिवार को बदलता हूँ मैं, परिवार में कोई बात नहीं सुनता उसकी। तो उसने सोचा चलो यार मैं ना पहले खुद को बदलता हूँ मैं। जब उसने खुद को बदला तो उसका परिवार बदला, जब उसका परिवार बदला तो धीरे धीरे उसकी सोसाइटी बदली, तो सोसाइटी बदली तो धीरे धीरे शहर बदला, जब शहर बदला तो धीरे धीरे करके देश बदला, देश बदला धीरे धीरे करके दुनिया बदली। दैट मीन्स अ चेंज हैपेंस एक्चुअली। तो इसीलिए खुद पे हमें काम करना है। इन केस यू वांट द वर्ल्ड टू बिकम बेटर प्लेस, देन फॉर दैट वी आर टू इन्वेस्ट इन पीपल। हालांकि हमने आपने एक टैगलाइन सुनी होगी फिलिप्स की, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, चीजों को बेहतर बनाइए, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, बट एक्चुअली वी शुड मेक पीपल बेटर। हमें लोगों को अच्छा करना, और लोगों को अच्छा करने का मतलब है हमें खुद को अच्छा करना है।
If every individual will become a better person, this world will become a better place, obviously, naturally, as a whole. तो माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे अगर सब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो मैक्रो लेवल पे अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी, राइट? तो सिमिलरली ये जो समय आया है, ये बेसिकली ये कोरोना वायरस का समय ये क्राइसिस का समय, ये स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए नहीं आया हुआ। इसमें हमें बैठ करके विचार करना चाहिए कि इस समय में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स दैट वी कैन गो फॉर। लाइक फॉर एग्जांपल somebody has lost one's job, one can give online coaching, ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं। वन कैन आपको कितनी सारी एप्स हैं, एंड थ्रू दीज एप्स वी कैन टीच, एंड देन व्हाटएवर लिटिल मनी कम्स उसको धीरे धीरे करके खर्च करेंगे, बिकॉज आने वाला साल जो है इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। इन दिस वन कैन टीच, वन कैन डू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज एज वेल। और ये समय है, ये बीत जाएगा। इट्स अ टेम्पररी थिंग। So in this way, instead of taking stress, we should seek the grace of God by chanting the names of God, and also we should seek guidance of those who are mature and who have been expert in managing the crisis, and they have experience, they have knowledge. ऐसे लोगों की guidance में रहना चाहिए हम लोगों को. We should try to practice spirituality. Spirituality, it gives us strength so that we can manage stress very nicely. जैसे कहीं पर अगर गड्ढे वाली जगह होती है ना, वहां से रिक्शा से जाओ तो धक 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 करके होता है, अरे कमर टूट जाती है। लेकिन मर्सिडीज बेंज से जाओ अगर उसी गड्ढे वाली सड़क से, तो झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज बेंज के शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत अच्छे हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स जो स्प्रिंग्स होते हैं वो इंस्टॉल करती है। एंड दैट फेज लाइफ में जो क्राइसिस आए हुए हैं उनको मैनेज करना आसान होता है। क्राइसिस आएंगे, देखिए उसको तो नहीं रोक सकते, बिकॉज संसार है, इट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड टू ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ डुअलिटी। बट यस, when we try to become spiritual, when we seek to have genuine spirituality in life, तो स्ट्रेस को मैनेज करने का एक ताकत आती है हमारे अंदर, एक ठहराव आता है, and then we can manage stress effectively without a doubt. ठीक है जी, so I'll stop here now. Anybody has any question, please go ahead with your questions now. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Nikunj? Krishna. Yes, Nikunj, please take over the chat. We have received a query. Prabhuji, एक query आई है. I'll just read the query out. I'm keeping the name discreet and all. Okay. I'm facing a tough time in my relationship with my wife. It relates to retroactive jealousy. Though I'm not upset on my wife, I am unable to get over her past. Is this all related to some type of karma or destiny? How should I get over it? Yeah, of course it is related to karma, no doubt. By having certain kind of wife, getting certain kind of husband, it's actually part of our karma. But after experiencing the karma, what do we do? That's our free will. Okay, like for example, somebody is having enviousness. हो सकता है भाई वाइफ सोचे मेरा हस्बैंड बहुत टैलेंटेड है, इसकी बड़ी इज्जत करते हैं लोग। जो चाहता है जी भाई साहब कहाँ है, जी भाई साहब कहाँ है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। और वाइस वर्सा, जब भी कोई आता कहता है वो जी भाभी कहाँ है, आप तो बड़े बोरिंग है जी, भाभी बड़े अच्छे से बात करती हैं, और लो जी हमारी कोई इज्जत ही नहीं है जी। So there can be enviousness, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, right? So that means we should see that God has made everyone unique. Everyone is unique. Some people are very academic, some people are very sporty, some people are more physical, some people are more intellectual, some people are like chatterbox, some people are very quiet, some people are very happy-go-lucky, some people are very grave, some people are absolutely bindas, some people are very sensitive. ये duality है और हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। तो इसीलिए बजाय कि ये सोचने की भाई उसको इज्जत मिलती है या मेरे को नहीं मिलती, well, we should see that everyone has been made unique. That's it. तो इससे उस यूनिकनेस को अप्रिशिएट करना शुरू करना चाहिए एक्चुअली हमें, बजाय कि ये सोचे कि ना मेरी वाइफ को ज्यादा इज्जत मिलती है या मेरे हस्बैंड को ज्यादा इज्जत मिल जाती है। वेल, दैट पर्सन हैज गॉट मोर सोशल स्किल्स, पर आपको कोई और चीज दी होगी, हो सकता है इट कैन बी किचन स्किल्स, इट कैन बी केयरिंग स्किल्स, इट कैन बी समथिंग एल्स, नॉलेज, इट कैन बी सोबरिटी, इट कैन बी ग्रेट पेरेंटहुड, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्पेशल दिया गया है। सो एनी पर्सन हु इज फीलिंग एनवियस, उसको ये सोचना चाहिए, बेसिकली अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए, that this person deserves to be this because he is blessed by God. For whatever reasons, he is blessed. अब जो blessed है, उसकी blessing से ईर्ष्या करके मेरे को मिल क्या रहा है? यहाँ तो भाई हो कि ईर्ष्या करके अब हमारे गुण बहुत बढ़ रहे हो, हमारी इज्जत बहुत बढ़ रही हो, ना 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 ना,
सिवाय कुड़ने के और कुछ नहीं मिलता ईर्ष्या करने वाले को। तो फायदा है क्या इसके अंदर? So that pays just by using intelligence, just by being thoughtful about this thing, that by being envious we do not get a single speck of profit. 1 मिलीग्राम प्रॉफिट नहीं मिलता by being envious. कुछ लोग बोलता है कि ना by enviousness we grow, कि भाई ईर्ष्या करें तो हम आगे बढ़ेंगे। ना 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 ना, enviousness में ना व्यक्ति अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देता, सामने वाले को नीचे कैसे दिखाना है इस पे ध्यान चला जाता है उसका। That phase he is acting to contrary to one's progress. तो इसीलिए जो enviousness है छोड़ देनी चाहिए, rather there should be appreciation. Enviousness का antidote है appreciation. Enviousness का antidote है appreciation. तो अगर आप चेहरे पे अगर तारीफ करें बहुत अच्छा है, पीठ पीछे तारीफ करना शुरू करें, that is the best. जिसे हम ईर्ष्या करते हैं ना, उसकी पीठ पीछे तारीफ नहीं हो पाती, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे और साथ ही प्रयास करेंगे कि ना मैं उस व्यक्ति की पीठ पीछे भी तारीफ कर सकूं, करेंगे तो निश्चित रूप से one would be successful and one can be free from this enviousness. और husband wife, बाबा, husband wife should be best friend of each other. वाइफ का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए तो हस्बैंड होना चाहिए, हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए तो उसकी वाइफ होनी चाहिए। अब बेस्ट फ्रेंड होने के बजाय वो बेस्ट एनिमी हो रखे हैं एक दूसरे के, अरे लो जी सियापा हो गया जिंदगी में। तो they should be very good friends of each other actually, husband wives. तो इसीलिए जितना मित्रता होगी आपस में, more they live like friends. और लवर कितना तो वेल हो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लाइक फ्रेंड्स। और एक्चुअली व्हेन दे आर मैच्योर हस्बैंड वाइफ्स, हमने देखा है वो लवर वाला चीज है वो तो शुरू में निकल जाता है, हनीमून पीरियड हो गया, लवर वाला पार्ट। जिंदगी चलती है आसानी से हस्बैंड वाइफ के बीच में व्हेन दे लिव लाइक गुड फ्रेंड्स, दोस्त की तरह रहते हैं। और दोस्तों से ईर्ष्या नहीं की जाती, दोस्तों की तो तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है, दोस्तों के लिए तो भगवान से प्रार्थनाएं की जाती है। तो इसलिए having the feeling of friendship for each other is what both of them they should work on, husband wife both of them. That ways they can get rid of this entanglement of enviousness. ठीक है जी, और अगला सवाल। प्रभु जी एक और सवाल है, थोड़ा फास्ट फूड टाइप का सवाल है। प्रभु जी प्लीज लेट अस नो 4-5 keywords to remember while managing stress. To remember while managing stress. Okay. हाँ, पहला फास्ट फूड वाला। हाँ फास्ट फूड या वाकई में जब स्ट्रेस हो, पहली बात तो ये याद रखना चाहिए कि ना जब स्ट्रेस हो, अफकोर्स तो हमें मैनेज करना ही है, जब हम स्ट्रेस में नहीं है ना उस वक्त हम क्या करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पीपल व्हेन दे गेट इनटू स्ट्रेस तो कहते हैं यार मैनेज करा दो जी, बस ये मैनेज करा दो आप फटाफट, बहुत स्ट्रेस हो रखा है। सर जब आप स्ट्रेस में नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे? कहता है कुछ नहीं, तो हम मस्तियां मार रहे थे जिंदगी के अंदर। अच्छा, और कुछ नहीं किया? नहीं सर बस तो मस्ती खोरी चल रही थी हमारी। जब हम स्ट्रेस में नहीं है ना उस वक्त भी हम क्या करते हैं, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मान लो अब स्ट्रेस हो गया, ठीक है, अब क्या किया जाए? स्ट्रेस जब हो रहा हो ना तो उस वक्त एक मैट्रिक्स को लगाना चाहिए। डू यू हैव अ प्रॉब्लम? आंसर इज नो, देन व्हाई वरी? अच्छा, डू यू हैव अ प्रॉब्लम? यस आई हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? अगला सवाल, नो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन व्हाई वरी? डू यू हैव अ प्रॉब्लम? यस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यस, देन व्हाई वरी? थोड़ा इसको सोच के देखिए, अगर आप ये मैट्रिक्स को अगर लेके चलेंगे ना लाइफ में, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। डू यू हैव अ प्रॉब्लम? नो, देन व्हाई वरी? यू हैव अ प्रॉब्लम? यस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो, देन व्हाई वरी? यू हैव अ प्रॉब्लम? यस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यस, देन व्हाई वरी? देन व्हाई वरी? दैट मींस वरिंग इज इल्यूजन एक्चुअली, वरिंग इज इल्यूजन। सो इसीलिए सो दैट मींस ये एक इसको लेके चलेंगे, दैट विल आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस। आल्सो हमारे हाथ क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना उसका भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। भाई कंट्रोल में है ही नहीं वो, मान लीजिए किसका बॉस है, स्क्रूइंग है, पेज खसता है, वो क्या कर सकते हैं? उसका बदल सकते हैं इसको? नहीं। सो व्हाई टेक टेंशन? ठीक है जी, आप बदल सकते हैं क्या? देन व्हाई टेक टेंशन? दैट्स द थिंग। तो अगर ये लेके चलेंगे हम, then certainly we can manage stress. And of course one thing which really helps is that before getting on to the office early in the morning, get up and have some spiritual practices, like for example just like we chant the holy name, we chant Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare, we chant Krishna's name, spiritual practice। उसके बाद दिन भर में भले ही हम 12 घंटे भी काम करें अगर, कोई समस्या नहीं है। like when I was working as a software professional, मैं सुबह उठा करता था, सुबह उठ करके मैं जब करूंगा फ्रॉम 5:30 till 7:30,
2 hours I will chant Hare Krishna Mahamantra Japa. 15-20 minutes, half an hour maximum I'll read Bhagavad Gita. Take a quick bath, freshen up, ऑफिस पहुंचेंगे 9 बजे, 9 बजे ऑफिस पहुंच के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करेंगे, घर आएंगे, फैमिली के साथ समय बिताएंगे, मार्केट जाना थोड़ा मार्केट जाएंगे, like that. But when I was working, there used to be so much of stress sometimes. Like one of the I did the longest shift was 27-hour shift. सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह के 9 बजे तक से लेके 12 बजे तक 27 घंटे, क्योंकि बहुत सारा लोड आया हुआ था हमारे पास, और उसका टैक्स जो था वो एक ही दिन का था और हमें करना ही था, अदरवाइज यू वुड लूज दैट प्रोजेक्ट. और वो काम मेरे को ही आया करता था. हमारे टीम में लड़कियां ज्यादा थी, लड़कियों को रात भर कहाँ रुकाएंगे, लड़कियों को बोला जाओ बहनों तुम तो घर ही जाओ. तो मेरे बॉस ने फिर मेरे से रिक्वेस्ट की कि देख भाई करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, यह प्रोसेस चलेगी तो तेरे ऊपर है आप. सो आई वर्क इन दैट शिफ्ट 27 hours. फिर ऑफकोर्स 12 बजे जब मैं 27 घंटे काम करने के बाद मेरा ब्रेन काम करना बंद कर चुका था और आई वाज एब्सोल्युटली नाउ जीरो एनर्जी. तो फिर मेरे बॉस ने कहा था बस भाई शाम के 6 बजे तक कहीं ना कहीं पड़ा रहे, आराम कर ले, कुछ खा ले पी ले, मैंगो शेक पी ले, कुछ जो करना है कर ले, शाम को 6 बजे ही कैब है, तेरे को मैं घर भिजवा दूंगा, तेरे को अभी जाना है मैं अभी भिजवा दूंगा मेरे भाई, तूने हमारा नुकसान होने से बचाया है, थैंक यू वेरी मच. बट दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. 27 hours लगातार काम करना, it was very very stressful, height of stress. But I took that. Why? Because I was having spiritual practices every day की spiritual practices. So 27 hours में shift कर पाया. I was awarded as well in that month because of that extra endeavor. पर ये कर पाने का stamina, ये खींच पाना, वो भी खुशी खुश खींच पाना, ये क्यों हो पाया? Because I was chanting Hare Krishna, I was having some solid spiritual practices. So that way spiritual practices का होना बहुत जरूरी है when we are trying to burst down the stress. Next question, yeah. प्रभु जी एक क्वेश्चन और है. Krishna is supreme personality of Godhead, then why in mythology serials like Radha Krishna they show that Krishna is avatar of Narayan? While reading Gita, I came across that Lord Brahma, Lord Shiva, Narayan or Lord Narayan cannot have opulence as full as Krishna. Just want to know how it is. Yeah. actually ये काफी स्पिरिचुअल सवाल है हालांकि, पर यस उसका एक सिंपल जवाब ये है, जो टीवी सीरीज बनाने वाले हैं, टीवी सीरीज बनाने वाले क्या है, बहुत गहराई में स्क्रिप्चर्स में नहीं जाते, they just go by the story and then they just in a very commercial way they portray the story. But somebody goes deep into the scriptures, one will realize that even Narayan and Vishnu they come from Krishna. इसका सबूत क्या है जी? इसका सबूत है there comes one story in Srimad Bhagavatam where Mahavishnu was seeking दर्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो उसके लिए उन्होंने एक लीला की, उन्होंने कुछ चुरा लिया था उनके धाम से इंद्रप्रस्थ से, और फिर अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को महाविष्णु के पास आना हुआ. तो महाविष्णु ने कहा मैंने चोरी इसलिए की थी जी ताकि आप मेरे धाम में आ जाओ यहाँ पर और आपके दर्शन कर सकूं मैं. So महाविष्णु is having darshan of Lord Krishna. Lord Krishna has got 64 qualities. Lord Vishnu has 60 qualities. So Krishna is 64. तो इसीलिए that means he is the original Lord. पर हाँ अब B.R. चोपड़ा जी और ये सब जो उनको दिखाना होता है वो दिखाए थे, लेकिन शास्त्र जो है शास्त्र they depict a different picture that Lord Krishna is supreme Lord himself. Yeah. Next question. Nowadays, to grow in life, in career, people let others down or use other one as a stepping stone or stair. Is that really required? Can't everyone grow and progress together? Even in offices, people let each others down. Yeah. For self growth. Actually लोगों को लगता है कि ना मैं इस तरह से आगे बढ़ जाऊंगा and I'll grow by not sharing my resources, by not sharing. पर इस चक्कर में ना एक बहुत बड़ी चीज जो अपनी लाइफ में गंवा रहे होते हैं वो है रिलेशनशिप्स. ऐसे लोग जो कि रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज करके ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचते भी हैं, लेकिन वो वहां पर अकेले होते हैं, वहां और कोई नहीं होता. सोचिए अगर मैं आपको एक सोने के बहुत बड़े महल में रखूं, खाने पीने का सामान हो, बढ़िया कोमल बिस्तरा हो, लेकिन अब वहां कोई बंदा परिंदा ना हो जिससे आप बातचीत कर सकें. हो सकता है कुछ समय बंदा एंजॉय कर ले, लेकिन कुछ समय बाद the person would be frustrated. अरे कोई बंदा तो हो जिससे मैं बात कर सकूं,
देयर इज नो वन टू टॉक टू, फ्रस्ट्रेटेड। जैसे अभी लॉकडाउन में देखिए ना, कई लोग बाहर नहीं आ पा रहे, कोई बातचीत करने को नहीं है, अगर डिप्रेशन में आ गए वो लोग, राइट। सो सिमिलरली ऐसे लोग जो कि दूसरों के कंधे पे पाँव रख करके आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है आगे बढ़ जाए, वो पहुंच भी जाए, लेकिन वहां पर ये अकेले रहते हैं। There is no one because everyone knows that this guy is such a selfish guy, this person is so self-absorbed, ये स्वार्थी आदमी है भाई, नंबर 1 का। तो ऐसा व्यक्ति अकेला रह जाता है। अच्छा, फिर उसके साथ होता क्या है, दारू की बोतल, और कोई भी नहीं उसके साथ, क्या करेगा, बस पैसा कमाया है उसने, पैसा क्या करेगा, या तो बढ़िया बढ़िया सिगरेट पिएगा या दारू पी लेगा, बस इस तरह करके वो सारा पैसा कमा लेता है। मतलब कि दिस इज सच अ सैड थिंग इन लाइफ। तो इसीलिए रिश्तों में और अचीवमेंट्स में ज्यादा जरूरी है रिश्ते, relationships are more important than achievements in life. This we need to understand. Prabhuji, then we Next have another question. Uh-huh. How to get rid of pressure of politics? How to get rid of pressure of politics? बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ना, पॉलिटिक्स बेसिकली क्या होती है, एक तरह की गुत्थम गुत्था है। देखिए भाई, कौन किसको चित करता है, राइट। जैसे आप देखो, पीपल हैव आर्म रेसलिंग, चलो पंजा लड़ाते हैं जी, ठीक है, पंजा लड़ा रहे हैं। अब जब तक ना दोनों जोर लगा रहे, तब तक क्या पंजा रहता है, आगे पीछे पंजा लड़ रहा है जी। लेकिन अगर एक अपना हाथ अगर ढीला छोड़ दे, अगर तो हाँ पंजा लड़ा, पंजा लड़ेगा। अब कहता पंजा लड़ा ना मेरे से, अरे पंजा लड़ा ही नहीं ना। अगर एक हाथ ढीला छूट जाए तो पंजा का कंपटीशन हो ही नहीं सकता। सिमिलरली पॉलिटिक्स भी व्यक्ति तभी तक खेल सकता है जब तक हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। इफ वी रिमेन न्यूट्रल कि भाई ओके आई एम देयर टू कंट्रीब्यूट, हमने कंट्रीब्यूट कर दिया जितना कर सकते थे, जितना नहीं कर सकते हमने बोल दिया जी सॉरी जी, हरे कृष्णा, वी आर सॉरी अबाउट दैट, एंड दैट्स इट। हु कैन प्ले पॉलिटिक्स? क्या हो जाएगा भाई, उसकी भाई किसी को प्रमोशन हो गई, वो आगे बढ़ गया, ठीक है बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना ईमानदारी से, 9 घंटा दे रहे हैं, उसका बढ़ गए नहीं बढ़ गए, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वक्त रोटी कमा रहे हैं ना, दैट्स इट, जिंदगी चल रही है, जब आपकी होनी होगी तो हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, पॉलिटिक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट दैट our plans are different and what is happening around is something different. So we say politics. कभी कोई ऐसा होता है जो हम चाहते हैं नहीं हो रहा होता, और जो हम नहीं चाहते हो वो हो रहा होता है। तो इसके ऊपर फिर हम टैगलाइन लगा देते हैं, पॉलिटिक्स हो रही है जी, बहुत पॉलिटिक्स है साहब, बहुत पॉलिटिक्स। नो ऐसा कुछ भी नहीं है। We should just move on with life. That's it. So whatever is there in my destiny, it will come. मैं पुरुषार्थ करूंगा, मेरे को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, परसों मिलेगा, it's okay. So इसलिए that ways we do not participate in politics, and that ways we save ourselves from so much of mess. Politics is mess, and worst is that when people carry this mess to their home as well, घर भी carry करते हैं, इसको लेकर ही जाते हैं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी नरक नहीं बनानी by participating in that political affair. It makes life crazy actually. Just do not participate in that politics. इसको खेलने ही खेले, we are not into it. So withdraw. So thank you so much, Prabhuji. There is another question now. How to overcome stress of being educated, jobless and sick with chronic kidney disease with monthly expense of 25,000 and home loan and a child education? हाँ, ये मैंने ना शुरू में आंसर किया था मैंने। I took this particular case, तो मैंने उसमें अंदर मैंने शेयर किया था, I'll just repeat my answer. मैंने शेयर किया था, देखिए अब फिलहाल तो अब 25,000 का खर्चा है तो है ही। अब इस सॉल्यूशन ये देखना चाहिए, इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं इसमें। इन सच अ सिचुएशन द पर्सन कैन गो फॉर नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इज वेरी इकोनॉमिकल, ठीक है जी। आपको करना क्या है, बेसिकली यू हैव टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। हमारी बॉडी जो है बेसिकली और कुछ नहीं है, बॉडी अगर क्लीन होती है ना, उसमें कोई बीमारी नहीं होती। अ क्लीन बॉडी कैन नॉट हैव एनी डिसीज। जो बीमारी है इसका मतलब बॉडी कैन बी अनक्लीन है बेसिकली। तो इसीलिए इवन किडनीज दे कैन बी डिटॉक्सिफाइड, एज द किडनीज विल बी डिटॉक्सिफाइड। उनका 25,000 का खर्चा चल रहा है हर महीने का, वो 20-15 करते करते कम हो जाएगा। दैट्स इट। So that's the way. Second is that one can go for Ayurvedic treatment. Ayurvedic treatments are more economical than allopathic treatment. ठीक है जी। बाकी अगर किसी ने अगर लोन ले रखा है, give a solution that if he has got some fast friend around him, so they can start living together now. बजाय कि अब जैसे I give the example of my own friends, तो कि 3 दोस्त हैं मेरे, और उनकी अगर घर का खर्चा जा रहा है 35,000 हर महीने का, तो 1,05,000 रुपए वो खर्च कर रहे हैं घर के किराए पे। Now they have shifted to one home. So in this way they are saving so much of money कि अभी आने वाला समय सर्वाइवल का है।
अब इसमें हम नहीं देखेंगे कंफर्ट्स हैं, दिस है, ना ना ना, भले ही वो घर पे अब दरी बिछा कर ही सोते हैं वहां पर, एटलीस्ट दे हैव अ शेल्टर, खाने पीने को कुछ है। एंड और अब तीनों जॉबलेस है, अब तीनों के पास जॉब्स नहीं है, ऑल द थ्री आर जॉबलेस। अब जो बनता है दे मेक सिंपल प्रिपरेशन, इट कैन बी खिचड़ी, इट कैन बी कर्ड राइस, इट कैन बी कड़ी चावल, वट एवर, आलू पूड़ी, मतलब हल्का हल्का बनाते हैं एक साथ। एंड देन दे हैव दैट व्हिच इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि अभी जॉब्स कहीं मिल नहीं रही हैं, तो क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को ग्रेजुअली ही रिलीज करेंगे, लाइक दैट। रिगार्डिंग लोन्स, ऑफ कोर्स कई सारे बैंक्स ने अभी लोन्स में दे रखा है, ओके, फॉर आफ्टर सो मेनी मंथ्स वन कैन स्टार्ट पेइंग अगेन, पेइंग बैक वंस लोन, बिकॉज़ जॉब्स है ही नहीं अभी। सो इन दिस वे वन कैन टेक केयर ऑफ सच अ सिचुएशन, इट इज पॉसिबल। हालांकि टफ सिचुएशन है, लेकिन पॉसिबल है, इसको ट्रबल शूट करना ये पॉसिबल, लिविंग अ सिंपलर लाइफ विद लेस एक्सपेक्टेशंस, लेस नीड्स। तो ये जो करेंगे हम लोग, देन सर्टेनली वी कैन पास थ्रू दिस क्राइसिस। और ये टेम्परेरी क्राइसिस है, परमानेंट क्राइसिस नहीं है। Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. The next question is, how the stress is to be released when you can't think anything? How the stress can be released when you can't think of anything? Okay, so firstly the stress can be released by not focusing on the object of stress. Actually stress भी कहाँ होता है, मन में होता है, क्योंकि मन ना एक जगह फंस गया है, क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। सो दैट एक मन क्या फंस गया है एक जगह पर, तो अगर मन चल नहीं रहा, कम से कम ये कर रहे हैं जहां फंसा हुआ है ना वहां से निकाल ले, दैट्स इट। एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि अब अच्छा इसको एक पॉजिटिव एंगेजमेंट दी जाए, द माइंड शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एंगेजमेंट, एंड दैट इज व्हाट इज टू बी गिवन। द स्ट्रेस में है, सो इसीलिए कभी कभी उस ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेस के ऊपर ध्यान ना दे करके वी वर्स द स्ट्रेस, बल्कि focus on the solution than the problem. So instead of being problem oriented, we should be solution oriented. That also helps us in busting the stress. बाकी अब देखिए इसमें अब current situation, what are the current options to avail, and that is also when we go for them, that also burst stress. And also by becoming spiritual, spirituality की ओर ध्यान देना चाहिए, so that our mind, our intellect, it becomes healthy, they all become healthy because of spirituality. ये करना चाहिए हमें। Thank you so much, Prabhuji. How to manage ठीक है stress जरूर। during, Yes. one more question, Prabhu. How to manage stress during studies of 10 to 12 hours a day and exam is nearer? Okay. So एक तो क्या है कि ना stress को manage, especially in studies, I would say early morning studies they are preferable. Late night studies they result in more stress, क्योंकि body को सही से जब rest नहीं मिलता, तो already पढ़ाई का stress handle ना होने की वजह से stress और ज्यादा हो जाता है। So I suggest that one should sleep early and get up early to study. I remember one of my exams, मैं एक book पढ़ना भूल गया था, और वो मैंने देखी रात को 9 बजे। मैंने कहा ले ये तो पूरी किताब ही रह गई, तो ध्यान में नहीं रहा मेरे। सो मैंने फिर क्या किया, 9 बजे मैं सो गया था, 9 बजे सो करके फिर मैं 1 बजे उठा, और रात के 1 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक 6 घंटा में लगातार पढ़ा, एंड आई कंप्लीटेड वन एंटायर बुक जस्ट बिकॉज आई हैड स्लेप्ट। मैंने 4 घंटे की मैंने नींद ली अच्छे से, और दैट्स इट। लेट नाइट स्टडी क्या होता है, ऑलरेडी दिन के थके हुए हैं, और लेट नाइट स्टडी जब करते हैं तो रात को नूडल्स चलते हैं, लेकिन सिर्फ नूडल्स ही चलते हैं, पढ़ाई लिखाई की एफिशिएंसी बहुत कम होती है रात की पढ़ाई में। तो इसीलिए दैट फेज टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ करके सुबह जल्दी उठो। नूडल्स खाने वाली पढ़ाई के अंदर से नूडल्स चल रहे होते हैं, बाकी गपशप चल रही होती है, दैट्स इट। इट इज वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ स्टडी एंड वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। सो नूडल्स की दुनिया से बाहर निकले, टाइम से सोए, टाइम से उठे, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें, दैट इज बेटर। बाकी है कि हम जो भी पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें। ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं पढ़ के रिवाइज नहीं करते, इसलिए पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, फिर पढ़े हुए को दोबारा पढ़ते हैं। सो इसीलिए पढ़ना चाहिए तो उसी वक्त रिवाइज करना चाहिए। इफ यू आर स्टडीइंग पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आपने पढ़े उसी वक्त रिवाइज करिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, and then zap through 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then page number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवाइज करेंगे there and then 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 zap through 11 12 13 14 16 19 20, इस तरह से 21 22 पेज नंबर 21, इस तरह से पढ़ के देखिए, आपकी रिटेंशन अच्छी होगी, बिकॉज देयर एंड देन वी आर रिवाइजिंग, देयर एंड देन वी आर रिवाइजिंग। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, किताब बंद की चल दिया आगे, अरे भूल जाओगे भैया। जैसे कील को यहाँ रखो, कील को ठोको अगर एक बार ठक और छोड़ दो, कील का क्या होता है,
कील गिर जाती है। तो कील को अगर आपको अंदर लेके जाना है ना, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, 1 2 3 अच्छे से मारते हैं ना, तो जाके वो कील अंदर जाके घुसती है। इस तरह से नॉलेज विल आल्सो will retain in our intelligence, will retain in our brain when we are doing revision 1 2 3, that goes inside actually. So revising the thing is very powerful thing for retention, and that would reduce our stress instead of rereading it again and again. अरे भूल ही गया, जो पढ़ा था मैं तो भूल ही गया, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं उसको, अरे बाबा, so sad. Revise there and then, very important. Wonderful, Prabhuji. The another question, Prabhuji, is stress is what? Physical or mental or emotional problem? Please kindly guide. All the three. फिजिकल जब स्ट्रेस होता है तो हम देखते हैं कि ना पसीने छूट रहे होते हैं और बॉडी में शिवरिंग होती है, तो these are physical symptoms of stress. We are shivering and our legs are shaking, and sometimes there are tears, sometimes people shout as well. These are all are physical symptoms. Emotional symptoms भी होते हैं. One is not able to think, one becomes blank, one becomes too emotional, or say flooded with various kind of thoughts, overthinking. These are emotional symptoms हैं stress के, right? तो इस तरह से दोनों ही लेवल पे, सटल लेवल पे और ग्रॉस लेवल पे स्ट्रेस होता है. But yes, in case we take care of the stress diligently in terms of being more spiritual and being thoughtful about the problem at hand, then certainly all the physical level stress and intellectual level stress or behavioral level stress, it can be taken care of, or emotional level stress, they all can be taken care of. Yep. Next question. The next question is, Prabhuji. Hi, sir. I'm feeling in depression due to current situation, and I'm jobless too, and unable to sleep in night as well. Feeling tensed. Please suggest something. तो रात को जो सो नहीं पा रही हैं, तो रात को ना सो करके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही ना. ऐसा है कि हम रात को अगर नहीं सोते फिर अगले दिन हमें नौकरी लग जाती है हमारी, ये भाई ये देखो, ये बड़ी भारी आंखों के साथ कोई आया है हमारे पास, इसको नौकरी दे देते हैं, ऐसा होता है. एक्चुअली व्यक्ति सोच पाएगा ठीक से जब वो ठीक से सोएगा. रात को सो करके सुबह जल्दी उठ करके भगवान का नाम लेकर के सोचे जी अब लाइफ में हमें करना है, क्या करना चाहिए अभी लाइफ, अभी जो करंट रिसोर्सेज है उसमें क्या करना है, बाकी अभी सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचना शुरू करें इस तरह से. Whether it can be some kind of online education I can give, I can teach accounting, I can teach mathematics online, we can do, क्या कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए बस हमें. तो ये सोचेंगे तो सॉल्यूशंस निकलेंगे, भगवान हेल्प करते हैं, you know. So इसलिए जो भी हैं उनसे कहिए रात को तसल्ली से सोना शुरू करें. रात को ना सो करके समस्या का समाधान तो होना नहीं है, तो रात को सो जाओ अच्छे से अभी, फिर कल सुबह फ्रेश उठेंगे तो फ्रेश सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. ठीक है जी, अगला सवाल. How to distance yourself from the physical world without leaving day-to-day activities? How to give up the Distance. How to distance yourself from this physical world without leaving day-to-day activities? No, we don't have to distance ourselves from the physical world, because we are living in the physical world. We are to deal with physical existence of this world, and we have to have dealings with the physical existence of this world. But yes, we are to mark a line where there is unnecessary indulgence. We should just stop ourselves from unnecessary indulgence. That's it. Otherwise, we are to deal. I have to ask somebody, hey, मुझे फाइल देना, अच्छा सुनो वो रिपोर्ट तैयार हो गई क्या, अच्छा let's have a meeting, what we can do. So that would be there actually. We are to deal with the physical world. लेकिन हाँ, over indulgence से बस हमको बचना चाहिए. So we are to just mark a line. Like for example, every day is working 9 hours. That's it. कुछ सोचे नहीं सर आप 12 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो, वो भी रेगुलर बेसिस पे. एक आधा दिन तो चलता है बिकॉज काम आया, वैसा मार्च का महीना आता है, इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, ज्यादा काम हो जाता है. बाकी टाइम ऑफ कोर्स वी कैन मार्क अ लाइन दैट यू नो आई गॉट अ पर्सनल लाइफ, आई गॉट अ प्राइवेट लाइफ, माय फैमिली लाइफ, माय स्पिरिचुअल लाइफ. उसके लिए समय निकालना है हमको. दैट केस वी आर टू find out a gap and we have to mark the line where I have to stop myself from overindulgence. ठीक है जी, और कोई सवाल? Yes. The next question is, the most important cause of stress at many times is indecisiveness.
fear of job leads to people taking extra pressure in job, and that is again leading to additional stress. How to come out of this vicious cycle? या एक्चुअली जब हम एक विशियस साइकिल में पड़ गए होते हैं ना, विशियस साइकिल इज लाइक अ क्विक सैंड, दलदल की तरह होता है ये। सो इन सच अ सिचुएशन दलदल से कैसे निकलते हैं? दलदल में ना आप खुद नहीं निकल सकते, दलदल से आपको ना कोई ऐसा व्यक्ति निकाल सकता है जो दलदल के बाहर हो। वो कोई ना कोई फेंकेगा, रस्सी वस्सी फेंकेगा, उसको पकड़ोगे और फिर आप खींच कर बाहर निकालेगा। दैट्स व्हाई वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम क्विक सैंड। दलदल से निकलने का यही तरीका होता है। उसी तरह से इन केस वी आर caught up in some kind of vicious circle, we should seek help of somebody who is outside the vicious circle. That person can help us by throwing the rope of good advice and then pull us out of that quicksand. That's the way actually. Okay. The next question is, Prabhuji, how to save oneself from overthinking? Yeah. ओवरथिंकिंग से बचने का तरीका ये है, दो चीजें कर लेंगे ना, ओवरथिंकिंग आपकी कम हो जाएगी या फिर ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगी। पहला जो चीज है, when there is over download of data, then there is overthinking. और आज सोशल मीडिया से लोगों के पास इतना ओवर डाउनलोड ऑफ डेटा है, oh my god, so many unnecessary things people take into their heads, and that's why they process that excessive download of information, that leads to overthinking. Secondly, acting like a controllership, मैं बदल दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, this leads to overthinking. So sense of controllership also leads to overthinking. ये दो चीजें सुधार लेंगे, overthinking can be taken care of. The next question, Prabhuji, is why it becomes more difficult when one tries to divert him or herself from stress? Why it becomes difficult when one tries to divert himself or herself from stress? अच्छा, in case somebody is trying to come out of the stress, that becomes very difficult, ऐसा? हाँ जी। Okay, why is that so? Reason being, we are habitual of stress, इसीलिए, and because our brain or intelligence works in a certain template which has been set by the society or media, that's why also we are not able to quit the stress, ऐसा। Like for example, just by giving a smartphone, like especially for students I'm saying, if they give a smartphone, they will be able to focus on studies so much, और उनको ही पता है ये बात, that they spend so much of time on Facebook, on WhatsApp, on YouTube, they spend so much of time. If they give up these three, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, वो जानते हैं इस बात को। But since एक सोसाइटी में देख, अगर मैं I'll not have WhatsApp, तो फिर मैं सोशल कनेक्शन टूट जाएगा, this that। अब ये जो थिंकिंग है, ये उनको स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, इवन हिम्मत करने के लिए भी रोकती है। तो ऐसे में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? That is, one should have decision making which is more far sighted. So when we are trying to come out of the stress, then I should see what are the obstacles in getting rid of stress. तो इन obstacles को हटा देना चाहिए, पर हटाते नहीं है because of our attachment. That's why we remain in stress, and that very act of removing the stress gives stress, which is so sad. But this happens because of our nature of thinking, which is quite abnormal. ठीक है जी, अगला सवाल। How to divert our thought when one gets thoughts to give up the life? ये तो हमने डिस्कस किया था, of course, throughout the discourse, that when somebody is planning to give up one's life, and we discussed also the case of Sushant Singh Rajput, that life has to be seen as the most precious thing. Life is most precious, more precious than any achievement, any trophy, any certification, any success. More important than all of this is life itself. But when we do not value life, and we value success, and being a rank holder, having a trophies and accomplishments, when we see them as more precious than life, तो फिर होता क्या, ऐसे में फिर लाइफ को त्यागना आसान हो जाता है कुछ लोगों के लिए। But actually life is most precious. So if somebody cannot perform in one platform, then seek another platform which may not be as glorious as the previous one, but one can still continue one's life, because life is most precious actually. So in this way one can quit the thoughts of suicide. And of course, by becoming spiritual, that's really helpful.
because we have not seen a single example where a spiritualist has committed a suicide. आज तक कभी नहीं सुना हमने कि एक फला भगवान का भक्त था, वो फांसी लगा कर मर गया, कभी भी नहीं. Because spirituality gives us so much of strength. If somebody is genuinely spiritual, one will not commit suicide. अगर कोई fakely spiritual है, then that's another thing. But real spiritual व्यक्ति कभी suicide नहीं करता. तो इसीलिए suicide से बचने के लिए बहुत जरूरी है that one should be very thoroughly spiritual. The next question, Prabhuji, is I have heard 6 to 7 hours of sleep is enough. But when Yes. I try to wake up earlier than 7 to 8 hours sleep, it seems like I am just dead. And if any time of the day I feel sleepy, I just can't resist from that. How to conquer this bad habit? एक चीज है कि ना, those who are sad people they tend to sleep more. उदास लोग ज्यादा सोते हैं. जो लोग उदास होते हैं ना, उनके मन में एक उदासी है किसी चीज को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के, कोई इनसिक्योरिटी को लेकर के, कुछ पास ग्रजेस को लेकर के, कुछ अन्याय को लेकर के. उदास लोग ज्यादा सोते हैं because that's the way mind seeks escape from that distressful situation. सो जाएंगे ना, थोड़ा सुख मिल जाएगा यार. जग करके है क्या, लाइफ में दुखी तो है, अच्छा दुख से कैसे बचे, सो जाते हैं. तो एक तो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई दुख तो नहीं है कहीं. कभी कभी लोग बहुत दुखी होते हैं तो ज्यादा सोते हैं. हैप्पी पीपल दे स्लीप लेस. खुश है ना, खुश लोग कम सोते हैं एक्चुअली, उदास लोग ज्यादा सोते हैं ऐसा. सो एक तो ये चीज है जो कि विच इज इनटू कंसिडरेशन कि देयर इज सम काइंड ऑफ सैडनेस व्हिच इज देयर इन मी, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्लीप हो रही है. सेकंड कारण है जब बॉडी में विटामिन की कमी होती है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ एक्सेसिव स्लीप. तो वन शुड टेक प्रॉपर डाइट. प्रॉपर डाइट लेंगे और समय से लेंगे अगर, उससे भी जो है नींद कर्टेल होती है. थर्डली, हमारे सोने का और उठने का समय फिक्स होना चाहिए. आप रात को 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, 6 घंटे की नींद लीजिए, वेरी गुड. साथ ही फोर्थली, वन कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी बाय प्राणायाम. प्राणायाम करेंगे उससे बॉडी में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी, जिसकी वजह से नींद कम होगी, बिकॉज ऑक्सीजन आपके पास है ऑलरेडी. So that way, one of the shortcut way of sleeping less is to do pranayam every day 15-20 minutes. प्राणायाम करें, इससे भी जो है स्लीप कम होगी. एक और कारण है जिसकी वजह से नींद आती है लोगों को, वो है पानी कम पीना. पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से नींद आती है. बॉडी में हीट होती है, बॉडी में हीट होती है तो बॉडी seeks to get rid of this heat while sleeping. We emit so much of heat while sleeping. So इसीलिए पानी पिएंगे अगर रेगुलरली, भले कम पिए लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें, उससे पानी पीने से भी जो है नींद हमें कम आती है. So these are some of the reasons of excessive sleep, जिस पर इसको curtail भी किया जा सकता है. Okay, now last question. Okay, last. Okay, So okay, I need 3 questions. Top 3 questions. Okay. Thank you, Prabhuji. So one of the question is, Prabhu, the final year. Sorry. Okay, I'll just continue. Okay, please, madam, go ahead. The final year exam status is yet pending. Students are stressed and confused due to no decision taken. How to get over this? जो पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करनी थी कर ली, पेपर में जो लिखना था लिख लिया, 2 झंडे गाड़ने थे गाड़ लिए, अब तो रिलैक्स होने का टाइम है भाई. दैट्स इट. अब इस समय स्ट्रेस लेकर ना तो वो लॉजिकल डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. मैंने कहा ना, अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, आजकल लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बदमाशी में करते हैं, आपको पूरा इस्तेमाल करते हैं, पर लाइफ जीने के लिए नहीं करते. पढ़ाई करने में दिमाग लगाना था, लगा लिया जी, जितना था सब लगा लिया, प्रिपरेशन में लगा लिया, पेपर दिया. अब नाउ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हमारा तो ड्यूटी क्या थी, पढ़ना. अब रिजल्ट क्या आएगा हमारे हाथ में नहीं है. That's it. आप you did your best. Now God will take care of the rest. Move on. That's it. Next question. What is life after death? We are profound about many things in life. What happens after death is one of them. After death, there is again life. And at the end of life, there is death. And that's why I say life. So there's reincarnation. There are many such cases. अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं. there was one TV serial जो कि आया करता था, I think सोनी में आया करता था, राज पिछले जन्म का. तो उसमें कई सारे केस स्टडीज थी where past life regression के थ्रू somebody went into past life and now he has come to this life, in past couple of lives as well. So that way there is reincarnation. हम शरीर बदलते हैं, मृत्यु के बाद फिर से हमें नया शरीर मिलता है. भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं ऐसा.
So that way it is happening. Practically भी देखा हुआ हमने through the TV serial known as Raj Pesha Janam ka. Practically also, and scripturally also it is confirmed. So पुनर्जन्म होता है जी. Now last question. प्रभु जी 2-3 questions actually कोरोना वायरस को लेकर है, so I'll just combine them. One of them is, will COVID start falling down after 21st June of solar eclipse? And is there any solution to COVID-19 in mythology or adhyatma? COVID-19 का वैसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है सात्विक जीवन. When we have सात्विक लाइफ तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है. इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो उस वजह से फिर या तो कोरोना वायरस इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, करेगा तो आप उसे रिकवर कर जाओगे. जैसे हमारे टेंपल में जो है, हमारे ईश्वर कैलाश में एक और टेंपल है, उसमें 15 भक्तों को हुआ कोरोना वायरस. एक वीक के अंदर सबके सब रिकवर कर गए. सबके सब रिकवर कर गए. क्या कर रहे थे वो? दे वर हैविंग प्राणायाम, दे वर हैविंग अदरक और मुलेठी और दालचीनी का काढ़ा एंड ये गिलोय का काढ़ा. बस दैट्स इट. ये गरारे किए थोड़े से, थोड़ा गर्म पानी पिया उन्होंने, एंड दे टुक सम काइंड ऑफ फ्लू की मेडिसिन. दैट्स इट. कोरोना वायरस, ऑल ऑफ देम वर कोरोना पॉजिटिव. 1 week, ऑल गॉन. सारे के सारे अब रिकवर हो चुके हैं, सबके सब हेल्दी हैं. किसी को 99 बुखार है अभी थोड़ा सा, ये 3-4 दिन में 100% ठीक हो जाएंगे. दैट्स इट. सात्विक लाइफ. सात्विक लाइफ कैसे आती है? स्पिरिचुअल लाइफ से सात्विक लाइफ आती है. यूएसए के अंदर इज राजसिक एंड तामसिक लाइफ, इसीलिए वहां जो है 2 मिलियन के आसपास केसेस हो गए. बिकॉज़ पीपल लिव वेरी राजसिक लाइफ. सो इसीलिए कोरोना वायरस से बचने का अच्छा तरीका है सात्विक जीवन जीना. Thank you so much, Prabhuji. It was really very inspiring, Prabhuji. Thank you. All right, everyone, I'll take your leave now. I got another session at 6 o'clock. तो मैं चलता हूँ. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबने मेरे को मौका दिया सेवा का. It was really nice talking to all of you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for such a magical session. And I am sure all the members got the solution to keep this stress away from all of us. So now I request Nitesh Kothari ji, our founder member of Binders Social Group, to give formal vote of thanks. Please, Nitesh ji. Very on behalf of all the chartered accountants, all the students, a big thanks to Amol Lila Prabhuji sir. Thanks for your guidance, and we are very much sure that your today's session has inspired a lot of people. We all have now charged up a very boost. Your speech has given really a boost, a new life, we can say, to all the members present over there. We have even seen in our WhatsApp group that many members have requested that can we have the online or recorded of the seminar. So we have promised that, and we would like to invite you, sir, once more to our session after this corona pandemic on a live session, 1-to-1 session. That would be a very great, sir. For this today's seminar, yes, sir. And for this today's seminar, sir, for this event, there was a great work by all our team members, and I would like to mention all of them. First of all, our own faculty or our own group member, CA Deepak Bansal ji, Mayuri madam, our Binder CA social group coordinators, conveners and coordinators, of course, our technical team, Akash, Ritu, Sheetal, and Kishore Mehta. So with all that efforts, collective efforts, sir, we were able to manage today's session. So with that, thank you very much, sir, for accepting our invitation, sir. Thank you very much for inviting me. Grateful to all of you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Now, I'm now ending this session.